So for today's class, we will start with. In last class, we have completed this solid waste management, in which last we have completed definition of solid waste management, types of solid waste management, and effects of improper solid waste management. So for for today, we will start with steps involved in solid management. What all are the steps which are involved in solid waste management? Okay, so the important steps are include five major steps, which is reduction of waste. First step. Second is reuse of waste. Third is recycling of waste. And fourth is treatment of waste. And fifth one is disposal of waste. Okay, so in this we will see one by one each step. So first we will start with reduction of waste. The first concept of waste management involves the reduction in the quantity of waste production. ठीक है, तो पहला जो स्टेप है दैट इज रिडक्शन ऑफ वेस्ट, उसमें क्या होता है कि कोशिश किया जाता है, पहला कॉन्सेप्ट यही है कि जितना भी वेस्ट जनरेट हो रहा है उसे कम से कम जनरेट किया जाए, यानी कि जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं उनको हम प्रॉपर वे में यूज़ करें, सो दैट देयर वुड बी मिनिमम वेस्टेज, कम से कम वेस्टेज हो। ये पहला स्टेप होता है। Then comes the second step, that is reuse. This refers to the case where certain wastes can be again used with very little reprocessing. For example, discarded bottles and containers, certain chemicals, lubricants, etc. can be put to further use with minimum processing. Okay, so reuse, second step जो है वो है reuse. इसमें क्या होता है कि those things which are collected as the form of waste, if they are in good condition and they can be used again with a little reprocessing. अगर थोड़े बहुत reprocessing के साथ अगर हम फिर से उन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं तो उसे हम फिर से यूज़ करेंगे। जैसे कि जितनी भी बॉटल्स आती हैं उनको हम क्लीन करके फिर से यूज़ कर सकते हैं। कुछ केमिकल्स भी होते हैं जिनका यूज़ हो सकता है। जो पेपर वेस्ट है, अगर वो सही कंडीशन में है, कंडीशन उसकी सही है, तो वी कैन यूज़ दैट आल्सो। सो दीज आर, so the second step is reuse. Third step is recycling of waste. तो हम recycling में जाते हैं। Recycling is the reprocessing of discarded materials into new useful products. ठीक है, recycling में क्या होगा, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हो चुका है, जिसका यूज ऑलरेडी हम कर चुके हैं, वो वेस्ट हो चुका है, उसको हम रीप्रोसेसिंग करते हैं, फिर से उसको प्रोसेसिंग में डालते हैं और उसके बाद उस मटेरियल को हम एक यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, so many type of waste contains some useful substances which can be used again. For example, metal scraps, cans, bottles, etc. are usually melted and recast into original materials. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है तो जिनको हम अगेन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मेटल स्क्रैप्स लगा सकते हैं आप। ठीक है, मेटल स्क्रैप्स, जो भी मेटल आपको मिल रहा है वो आप सेग्रीगेट करके उसके बाद उस मेटल को मेल्ट करके आप फिर से यूज़ कर सकते हैं। कैन्स, जितने भी जो कैन के बॉटल रहते हैं ना, मेटल के बॉटल रहते हैं, यानी कि स्टील के या फिर एल्युमिनियम के बॉटल्स रहते हैं, उसका भी यूज़ हो सकता है। बॉटल्स, जो ग्लास बॉटल्स होते हैं, that can also be used. So there are a lot of things which can be recycled and used very nicely in their second treatment also. So treatment of waste. A third step is treatment of waste. Hazardous waste can be treated by a number of processes to change the physical and chemical composition of the waste so as to reduce and neutralize their toxicity. The treatment varied depending on the physical state and chemical nature of the hazardous waste. जितने भी ऐसे वेस्ट जो कि हजार्डियस है, जो कि मतलब हार्मफुल है, ठीक है, उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं, प्रोसेस करते हैं, उनका प्रोसेसिंग होता है। ओके, हजार्डियस वेस्ट कैन बी ट्रीटमेंट बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेस, बहुत सारे ट्रीटमेंट होता है उसमें, सो दैट वी कुड चेंज देयर फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन, हम उनका फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन दोनों ही चेंज कर सके। एंड उसके बाद क्या होगा कि उनका फिजिकल और केमिकल चेंज करने के टाइम में दिस पॉइंट द those people keep in mind कि उनका जो
टॉक्सिसिटी है वो कम किया जा सके, ओके, उनका टॉक्सिसिटी कम किया जा सके। एंड और जो ये फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट होता है जो भी है वो वेरी करता है बेस्ड ऑन द वेस्ट, ठीक है, किस तरह का वेस्ट है, कितना हजार्डियस है, कितना ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, उसके बेसिस में हम ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, लास्ट स्टेप इज डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, द फाइनल स्टेप इज हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। जो लास्ट स्टेप है वो क्या है कि हमें अच्छी तरह से अपने वेस्ट को डिस्पोज करना है, ठीक है, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, लास्ट स्टेप इज डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। So this was all about this was all about the steps involved in solid waste management में ये सारी चीजें आती है। Now we will start with a new topic that is discarding waste। discarding waste, हम कैसे डिस्कार्ड कर सकते हैं वेस्ट को, ओके। तो डिस्कार्डिंग वेस्ट में ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं, we will see one by one। The following methods are adapted for discarding waste। First is open dumps। जैसे किसी भी जो वेस्ट होता है ना उसको हम कैसे डिस्कार्ड करें या डिस्पोज करें, उसके लिए बहुत सारे मेथड्स यूज होते हैं। तो फर्स्ट मेथड जो ये था ओपन डंप। ओपन डंप यानी कि जो खुला हुआ एरिया है, ओपन एरिया में ही जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है उसको डंप कर दिया जाए, ठीक है। द वेस्ट, तो here in open dump the waste are dumped on the vacant land which takes the shape of huge piles। Open dumps are the oldest, simplest and most common method of disposing of solid waste। जो ये ओपन वेस्ट है क्या होता है, लैंड जो एक खाली एरिया है, खाली एरिया देख के वहां पे जो भी वेस्ट है उसको डंप करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड है, ठीक है, और बहुत सिंपल मेथड भी है क्योंकि इसमें कोई प्रोसेसिंग या कोई चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती है और बहुत कॉमनली यूज्ड होने वाला मेथड है। आप देखोगे कि हर एक शहर या हर एक गांव के आसपास बाहर ऑलमोस्ट आउटर सर्विस में एक ओपन डंप जरूर होता है। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। ओपन डंप्स आर अनअट्रैक्टिव, वो आपका जो भी एरिया है उसको गंदा कर देते हैं, दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है। दे ब्रीड पेस्ट पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यू नो होते हैं एंड पेस्ट होते हैं, पेस्ट पेस्ट, ओके। ये एयर पोल्यूशन करते हैं, सरफेस वाटर को पोल्यूट करते हैं और जो लैंड है उसको भी, जिस लैंड में ये हो रहा है वो भी वाट मतलब लैंड पोल्यूशन भी करते हैं, ठीक है, कि वो लैंड खराब हो जाता है फिर बाद में। नेक्स्ट कम्स द लैंड फिलिंग। पहला तो हो गया डिस्कार्डिंग मेथड में ओपन डंप्स, देन इज लैंड फिलिंग। अब लैंड फिलिंग में क्या होता है कि पहले डिग किया जाता है, उसके बाद जो भी डंप जो भी वेस्ट है उसको डाल के उस एरिया को, सरफेस को फिर से भर दिया जाता है, ठीक है। लैंड फिलिंग ऑल्सो नोन एज a sanitary landfill is a place that garbage is buried under soil and it is most popularly used method of waste disposal today। This soil covers discourages the breeding of pests, decreases offending odors and minimize bleaching। तो इसमें क्या होता है ना, ये बेटर, लैंड फिलिंग इज बेटर देन ओपन डंप्स। ओपन डंप से ज़्यादा अच्छा है बिकॉज इसमें क्या है कि गंदा भी नहीं दिखता है, ठीक है। देन पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के होने के भी चांसेस कम हो जाते हैं एंड देन ये एयर पोल्यूशन नहीं करता है, सरफेस वाटर पोल्यूशन का भी कम हो जाता है, सरफेस वाटर पोल्यूशन ऑल्सो, ओके। क्या क्या प्रिकॉशन हमको रखना चाहिए बिफोर ऑपरेटिंग अ सैनिटरी
लैंडफिल, क्या क्या हमको करना चाहिए लैंडफिल से पहले? प्रॉपर साइट सिलेक्शन फॉर a landfill is important. Okay, the second point is the landfill should be located far from river, lakes, flood plains and underground water recharge zone. मतलब जो ये लैंडफिल हम कर रहे हैं, जहाँ पे भी हम लैंडफिल बना रहे हैं, वो एरिया जो है वो रिवर से दूर होना चाहिए, लेक से दूर होना चाहिए, फ्लड एरिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्लड एरिया है तो क्या होगा कि फ्लड आया तो ऊपर का सरफेस जो फिल किया हुआ था वो बह जाएगा और अंदर से पूरा जो भी वेस्ट है वो फिर बाहर सरफेस में आ जाएगा और वो ओपन डम बन जाएगा, ठीक है। और जो एरिया है वो अंडरग्राउंड वाटर वहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अंडरग्राउंड वाटर है और हमने लैंडफिल करना स्टार्ट कर दिया देन वो वाटर को भी कंटामिनेट कर देगा। द ट्रॉपिक रिलीफ, डेप्थ ऑफ ग्राउंड water table and soil and rock type should be taken into consideration। ठीक है, इन सब चीज़ों का भी हमको ध्यान रखना है। एडवांटेजेस क्या होते हैं लैंडफिल्स के, सैनिटरी लैंडफिल्स के? ये लेस कॉस्ट एंड लेस ऑर्डर कॉज करता है, मतलब कम खर्च में और बदबू भी कम होती है इस सैनिटरी लैंडफिल में। सेकंड, कम accommodates a huge amount of waste which is simple and economical। बहुत सारा ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट इसमें डिस्पोज किया जा सकता है और बहुत सिंपल है और इकोनॉमिकल भी है, मतलब खर्चा ज़्यादा नहीं आता इसमें। सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, लैंडफिल्स एरिया कैन बी रिक्लेम्ड एंड यूज फॉर अदर पर्पसेस। जैसे जिस एरिया में लैंडफिल हुआ है उस एरिया को अच्छे से बंद करने के बाद, फिल अप करने के बाद, जब वो पूरा फिल्ड हो चुका है उसको फिल अप करने के बाद किसी और चीज़ के लिए उसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और जैसे जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा वो क्या होगा, वापस से सॉइल में चला जाएगा और वो क्या होगा, दैट इज वेरी गुड। डिसएडवांटेज क्या है? इतनी ज़मीन नहीं है ना, लैंड अवेलेबिलिटी नहीं है तो इसलिए भी मुश्किल है। ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट हाई है। अगर अच्छी तरह से प्रॉपरली लैंडफिल को मैनेज नहीं किया है तो बहुत बैड ऑर्डर आता है उससे। कई जगहों पे ऐसा होता है कि लैंडफिल है और वहाँ पे बहुत सारे मॉस्किटो इंसेक्ट्स बहुत सारे होते हैं। मिक्स ग्रीन हाउस गैसेस, हो सकता है कि बिकॉज ऑफ द डिकम्पोजिशन वहाँ पे से ग्रीन हाउस गैसेस भी निकलने लग जाए, डेट इज मीथेन। हो सकता अंडरग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर सकता है, स्लो डिकम्पोजिशन, ठीक है। दीज आर द डिसएडवांटेजेस। इंसिनरेशन में क्या होता है कि जो भी वेस्ट है उसको अराउंड टेम्परेचर है 1300 डिग्री सेल्सियस में बर्न कर दिया जाता है, ठीक है। इंसिनरेशन इज द वेस्ट डिस्ट्रक्शन इन a furnace by controlling controlled burning at high temperature. In this, the hazardous waste are destroyed through high temperature burning. Okay, this process is also known as thermal treatment। तो इसमें क्या होता है कि जो भी वेस्ट जनरेट हुआ है उसको हाई टेम्परेचर में बर्न कर दिया जाता है और जो टेम्परेचर है वो है 1300 डिग्री सेल्सियस। प्लांट इन विच द वेस्ट आर बर्न आर कॉल्ड इंसिनरेटर। जो जो ये इंसिनरेशन के लिए जो प्लांट यूज होते हैं उनको कहा जाता है इंसिनरेटर। ओके, सो व्हाट आर द एडवांटेजेस? तो इसका जो रेसिड्यू होता है वो 20 to 25% ही होता है, ठीक है, तो ज़्यादा रेसिड्यू नहीं बचता है, तो दैट इज़ वेरी गुड। और बहुत छोटे से जगह में हो जाता है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो नॉट सो हाई, ठीक है। अगर आपके सिटी में ही, आपके एरिया लिमिट में ही अवेलेबल है इंसिनरेशन के लिए इंसिनरेटर, देन कॉस्ट भी कम होता है।
सेफ है, हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ है ये, क्योंकि कोई ऐसे पोल्यूशन कॉज नहीं कर रहा है। सेकेंड इज an incinerator plant of 3,000 ton per day capacity can generate 3 MW of power। ठीक है, इतना पावर जनरेट कर सकता है, तो आप लगा लो इसमें पावर जनरेट भी हो सकता है। ठीक है, सो डिसएडवांटेजेस क्या होता है? इट्स कैपिटल एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज हाई। इसका जो कैपिटल कॉस्ट है और ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो हाई होता है। ठीक है, मतलब जब आप इसको फिक्स करोगे, जब इसको आप लगाओगे तो उस समय भी कॉस्ट ज़्यादा होगा, जितनी बार आप इसको यूज़ करोगे उसका भी कॉस्ट ज़्यादा है। इसको इसका इसके यूज़ के लिए कोई एक स्किल्ड पर्सन होना चाहिए। ठीक है, ट्रेन्ड पर्सन होना चाहिए। फॉर्मेशन, जो भी डस्ट निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, एशेस निकल रहे हैं आफ्टर इंसिनरेशन, उसका भी प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। अदरवाइज देखो, जो एशेस निकले हैं वो भी पोल्यूशन कॉज करेगा, डस्ट भी पोल्यूशन कॉज करेगा, स्मोक भी पोल्यूशन कॉज करेगा अलग अलग तरह से। जैसे स्मोक करेगा एयर पोल्यूशन, डस्ट एंड दिस एशेस कैन आल्सो कॉज स्मोक पोल्यूशन, सॉरी एयर पोल्यूशन, along with लैंड पोल्यूशन, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट इंसिनरेशन। फोर्थ type of solid waste disposal, the last one is composting. Composting. In this method, bulk organic waste is converted into fertilizer by biological action। ये जो तरीका है इसमें क्या होता है कि कोई जितने इसमें हम सबसे पहली बात, जितने भी ऑर्गेनिक है ना वेस्ट, उसको हम डिस्पोज कर सकते हैं। और इसमें क्या करते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट को हम फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे separate compostable water is dumped in underground trench in layer of 1.5 meter and finally covered with earth or 20 centimeter left for decomposition। ठीक है, इसमें करते क्या है कि जो भी वेस्ट है उसको अंदर डाल करके, ठीक है, उसके बाद अंडर द ग्राउंड, अंडर डालना मतलब अंडर द ग्राउंड डालेंगे और उसके बाद ऊपर से फिल अप कर देते हैं और उसको डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, कुछ टाइम के बाद फिर हम उसको जाके चेक करेंगे, जब वो फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, उसको एज ए फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर इज डिस्ट्रॉयड बाय acetomycetes and a lot of heat is liberated, increasing the temperature of compost by 750 degrees Celsius. Waste is finally converted into powdery brown color odorless mass called humus. Humus has a fertilizing value and can be used in agriculture. Humus contains a lot of nitrogen essential for plant growth apart from phosphate and other minerals. Okay. Advantages of composting. The advantages क्या है? Manure added Manure added to soil increase water retention and ion exchange capacity of soil। तो ये क्या करता है, जो अगर हम कंपोस्टिंग के थ्रू जो भी हम फर्टिलाइजर बनाएंगे, जिसको हम मेन्योर कहते हैं या ह्यूमस कहते हैं, उसको अगर आप सॉइल में डालोगे तो सॉइल का वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी बढ़ता है, मतलब वो पानी को होल्ड करके रखेगा ऐसा सॉइल। और उसके साथ साथ क्या होता है कि उसमें आयन एक्सचेंज कैपेसिटी भी बढ़ जाता है सॉइल का। इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग सेवरल इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट। ओके, मैन्योर कैन बी सोल्ड देयर बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ डिस्पोजिंग वेस्ट। जो भी मैन्योर बना है उसको इवन हम क्या कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं, सोल्ड भी कर सकते हैं। Nutrient rich compost increases the water hold capacity of soil and improves crop yielding। इससे क्या होगा, सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगा और क्रॉप प्रोडक्शन का रेट भी बढ़ेगा। इट इज एन इजी इनएक्सपेंसिव, है ना, इट इज एन इजी
इनएक्सपेंसिव एंड इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर। ये एक बहुत इजीली बनने वाला, कम खर्च में बनने वाला और एनवायरमेंटल फ्रेंडली फर्टिलाइजर है। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं, जो कि बहुत ही अच्छे एडवांटेजेस है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द डिसएडवांटेजेस ऑफ कंबशन और कंबस्टिंग। ओके, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं ये देखते हैं हम। जैसे अगर जो वेस्ट जनरेट हुआ है उसमें, ये इसमें ना हम सिर्फ कंबस्टिंग में हम सिर्फ उसी वेस्ट को ट्रीट कर सकते हैं जो बायोडिग्रेडेबल हो। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको हमको अलग से ट्रीट करना होगा। ठीक है। और सेकंड जो डिसएडवांटेज वो है, ये जो टेक्नोलॉजी है वो लोगों के बीच में, फार्मर्स स्पेशली फार्मर्स के बीच में इतना कॉमन नहीं है, और इस वजह से क्या होता है, इसको एक प्रॉपर मार्केटिंग नहीं मिल पाता है। ठीक है, मार्केट नहीं मिल पाता है। So these are the disadvantages. Only two disadvantages are there. Other than that, बहुत ही फायदेमंद है ये कंपोस्टिंग प्रोसेस। ओके, next we will start with role of individual in reverting of prevention of pollution. Role of individual in prevention of pollution. लोगों का रोल क्या है पोल्यूशन को कंट्रोल करने में? So this we will see. Okay. So we will take, after 1 minute we will start this new topic, that is role of individual in the prevention of pollution. लोगों का क्या रोल होता है पोल्यूशन को रोकने में? तो देखो, अभी जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग पोल्यूशन को रोकना एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये कौन कर सकता है? वी ह्यूमन बीइंग कैन ओनली डू दिस। कैसे कर सकते हैं हम? जो भी गार्डन के क्रॉप्स हैं उसको रोटेटिंग में यूज करें, रोटेशन में उनको कल्टीवेट करें। ठीक है, तो इससे भी क्या होगा, सॉइल में सॉइल का न्यूट्रिएंट भी बढ़ेगा, और जिससे भी जितने भी सॉइल बॉर्न डिजीज हो रहे हैं वो भी कम हो जाएंगे। नेचुरल फर्टिलाइजर का यूज करें। कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज ना करें विच आर हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट। अर्ज स्टोरेज टू अबेंडन वेस्टफुल पैकेजिंग एंड टू यूज बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। जितने भी जो ऐसे ऐसे पैकेजिंग यूज करें which is biodegradable. Okay, there should be a wise use of fertilizers. There should be a, you know, wise use of fertilizers, pesticides and detergents.
अच्छे से यूज होना चाहिए। Next comes the help more in pollution prevention than pollution control. ज़्यादा करके we should more focus on controlling, you know, preventing the pollution rather than controlling the pollution. Pollution ना हो ऐसे steps we should take rather than कि pollution को control कैसे करें, उससे अच्छा है कि pollution ही ना होने दे। ठीक है। Water, use water, energy and other resources efficiently. Water का इस्तेमाल कोई भी एनर्जी के लिए जैसे कोल पेट्रोलियम इन सब का इस्तेमाल एफिशिएंटली करें, अच्छी तरह से सोच समझ के। Purchase recycled and environmentally safe products। ठीक है, जिसको हम रिसाइकिल कर सके, रीयूज कर सके, ऐसे एनवायरमेंटली सेफ प्रोडक्ट्स का यूज करें। यूज CFC फ्री रेफ्रिजरेटर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री रेफ्रिजरेटर का यूज करें। यूज नेचुरल गैसेस देन कोल, reduce deforestation and plant more trees. Use office machine in well ventilated areas. Conservation of natural resources and development of non-polluting resource or source of energy. Environmental education and environmental laws. Use water resources efficiently. Use handkerchief instead of paper tissue. Dispose of potentially harmful products such as cell, batteries, pesticides, containers, etc. properly. Use gunny bag, जो हम shopping के लिए bag use करते हैं, that is called gunny bag. Use gunny bags made of jute instead of plastic bags. जूट के bags का use करें. So these are some of the very few points. कुछ बहुत ही कम points हैं जो कि मैंने अभी बताया. बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जैसे कि environmental education होना जरूरी है, environmental law develop होने जरूरी है, डंपिंग ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन लो लेइंग एरिया, जितने भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं जो कि सड़ते नहीं है जैसे प्लास्टिक है ये सब है ना, उन सब का जो डिकम्पोजिशन है वो या डंपिंग जो है वो कहाँ होना चाहिए, लो लाइंग एरिया में होना चाहिए। वाटर फ्रेशनर जो है उसका यूज ना करें टॉयलेट में। So yes, these all are certain points to in role of individual in prevention of pollution, role of individual in the prevention of pollution, इसके कुछ points थे ये। So this was all about it. Last is disaster management. So disaster management is one of the very important topic. Before entering into disaster management we should first understand what is disaster. Okay, so this topic we will see on the next class क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे विच इज टुमारो। इसके बाद हमारा 5th यूनिट कंप्लीट हो जाएगा एंड वी विल बी हैविंग ओनली 2 यूनिट्स दैट इज 6th एंड 7th, वो भी हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। So yeah, that's it for today's class. Thank you.